وزیر اعظم کی جانب سے سعودی سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب کے آغاز میں عربی میں مہمانوں سے گفتگو کی اور ان کو خوش آمدید کہا۔ والتاریخ یشہد ذلک ونحن لا ننسى ابدا انشاءاللہ باذن اللہ۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی سعودی عرب کو جدید بنانے کی پالیسیوں کو سراہا۔ بولے محمد بن سلمان سعودیہ کے لیے شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ The most dynamic leadership of my brother, the Crown Prince Mohammed bin Salman, they are ready to invest in Pakistan, ready to support Pakistan beyond imagination, provided we are ready to accept this challenge and stand up and say no to those hackneyed techniques of the past. وزیر اعظم نے کہا کہ SIFC سرمایہ کاری کے لیے اہم خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس پلیٹ فارم سے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دیں گے۔ Able to offer its capabilities to train our Saudi brothers in various walks of life. I can assure you, my brothers and sisters, without any fear of contradiction, that Saudi Arabia today is far more experienced and has immense potential of experts to train Pakistani brothers and sisters in various walks of life. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب IT، زراعت، ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں ترقی کر رہا ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کو ہر قسم کے تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم کمپنیوں کی سطح پر معاہدے کریں گے۔ اسلام آباد میں پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم کا افتتاحی سیشن ہوا۔ پاکستانی اور سعودی سرمایہ کاروں، وزراء، سرکاری حکام اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ اسلام آباد میں پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم 2024 کا انعقاد۔ افتتاحی سیشن سے خطاب میں سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری یوسف بن ابراہیم المبارک کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانیوں کا اہم کردار ہے۔ ہم بھی پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ سعودی سرمایہ کار پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ And to the Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan. محمد اورنگزیب نے کہا حکومت کی بہترین معاشی پالیسیز کے نتیجے میں استحکام آ رہا ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ We want to get on with the execution of the structural reforms which we all know, and I've always talked about the fact that for the what and why Pakistan has known for a very long time. It's now getting on with the execution. وفاقی وزیر توانائی مصدق ملک نے کہا پاکستان کے پاس افرادی قوت کی کمی نہیں، پاکستان اور سعودی عرب کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ I know I have worked at KFUPM, I've been a professor at KSU, I know what Saudi talent is like. And having grown up in Pakistan, I know what Pakistani talent is like. And if you put these two talents together and move them forward into this new vision of a society, I think we can tap into the global value chains. نیشنل کوارڈینیٹر SIFC لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے کہا SIFC سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستانی افرادی قوت سعودی عرب اور دیگر ممالک کی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ نجی شعبے کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے۔ سعودی سرمایہ کار اور تجارتی وفد کا دورہ پاکستان جاری ہے۔ حکومت نے سعودی وفد کے بعد ترکیہ کے اعلیٰ سطح کے وفد کے دورے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔
मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमती कोशिशें कारगर साबित हो रही हैं। ईरानी क़यादत, सऊदी वजारती वफ़द, अमरीकी आला सतह वफ़द के बाद अब हुकूमत ने तुर्किया की आला क़यादत के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक मौजूदा सऊदी सरमायाकार और तिजारती वफ़द का दौरा पाकिस्तान जारी है, मगर साथ साथ हुकूमत ने सऊदी वफ़द की वापसी के बाद तुर्किया के आला सतह वफ़द के दौरे के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनके हमरा तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हुकान फद्दान भी पाकिस्तान आएंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के दौरा पाकिस्तान के लिए दोनों हुकूमतों में राब्ते जारी हैं। दौरा पाकिस्तान में तुर्किया सदर के हमरा तुर्किया के सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल बड़ा वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचेगा। जमहूरिया तुर्किया के सदर का दौरा जून में मुतवक्की है। दौरे की हतमी तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। तुर्किया सदर के हमरा तुर्क कारोबारी शख्सियात, सरमायाकार और मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान भी पाकिस्तान पहुँचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से दिए गए इशाइये से खिताब। बोले, बलूचिस्तान को तरक्की और खुशहाली देना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। मुल्क की तरक्की और सूबों को हुकूक देने के लिए 18वीं आइनी तरमीम पास की गई, जिससे तमाम सूबों को फ़ायदा पहुँचा। बलूचिस्तान के मादनी मसाइल को जदीद तरीके से निकालने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कम आमदन और हकदार ख़ानदान को पैकेज दे रहे हैं। बलूचिस्तान के मसाइल सियासी डायलॉग के ज़रिए हल होने चाहिए। हुकूमत और अस्करी क़यादत की हिदायत पर मुतालिका इदारों का मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 69,000 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके उनसे 91 अरब रुपए से ज़ायद रकम वसूल की जा चुकी। हुकूमत और अस्करी क़यादत को इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। हुकूमत और अस्करी क़यादत की हिदायत पर मुतालिका इदारों का मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 69,000 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके उनसे 91 अरब रुपए से ज़ायद की रकम वसूल की जा चुकी। हुकूमत और अस्करी क़यादत को इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ आज से होगा। सुबह की शिफ्ट में साइंस ग्रुप जबकि शाम की शिफ्ट में जनरल ग्रुप का पर्चा लिया जाएगा। मैट्रिक बोर्ड ने इम्तिहानात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि सील बंद इम्तिहानी पर्चों की तरसील शुरू कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा एक न्यूज़ रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया, बताइएगा मैट्रिक इम्तिहानात के किस वक्त शुरू हो रहे हैं और इसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आज से आगाज़ होगा और तैयारियां जो है इसके लिए मुकम्मल कर ली गई हैं। इम्तिहानी सेंटर्स के लिए जो पर्चों की तरसील है उसका सिलसिला जो है वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से जारी है। तकरीबन जो है 505 इम्तिहानी सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 3,65,000 से ज़ायद तलबा जो है वो पर्चा देंगे। सुबह की शिफ्ट में जो है वो साइंस ग्रुप जबकि शाम की शिफ्ट में जर्नल ग्रुप के इम्तिहानात लिए जाएंगे। आज कंप्यूटर स्टडीज़ का जो है वो पर्चा साइंस ग्रुप के तलबा जो है वो सुबह 9:30 बजे उसका आगाज़ होगा और 12:30 बजे तक जो है वो पर्चे का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि शाम की शिफ्ट में 2:30 से 5:30 बजे तक जो है वो पर्चा लिया जाएगा। ठीक है रबिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आज़मीन हज की तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर से 68,000 से ज़ायद अफराद सरकारी तौर पर हज की सआदत हासिल करेंगे। कराची से 16,281 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। पहली हज फ़्लाइट 9 मई को रवाना होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, सक्खर, सियालकोट, रहीम यार खान से हज के ज़रिए मदीना और मक्का पहुँचेंगे। पहली बार रोड टू मक्का ऑपरेशन का आगाज़ भी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के सिलसिले में लाहौर से दुबई पहुंच गई है। दुबई से टीम आयरलैंड रवाना होगी, जहां वो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। ये मैचेस 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे। आयरलैंड से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड जाएगी, जहां वो इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। आपको बताते चलें कि दुबई से कौमी क्रिकेट टीम आयरलैंड रवाना होगी, जबकि वहां पर 3 मैचेस की T20 सीरीज़ खेलेगी
اور یہ میچز 10, 12 اور 14 مئی کو ڈبلن میں کھیلے جائیں گے۔ آئرلینڈ سے پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ روانہ ہو جائے گی، جبکہ قومی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف 4 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے کے سلسلے میں لاہور سے دبئی پہنچ گئی ہے۔ دبئی سے قومی کرکٹ ٹیم آئرلینڈ روانہ ہوگی، جبکہ قومی ٹیم 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ اجلاس میں سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد سے۔ جی صدیق، بتائیے گا کیا ایجنڈا آج کے اجلاس کا؟ جی، وزیراعظم ہاؤس میں دن 11 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا، جس میں اہم ترین معاملہ جو ہے وہ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات سے متعلق جو سیکرٹری کابینہ ہے کامران علی افضل، جو کہ انکوائری کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ ان کو 4 دن کا وقت دیا گیا تھا، جو کہ کل پورے ہو گئے تھے، اور آج اس حوالے سے ان کی جو رپورٹ ہے وفاقی کابینہ میں زیر بحث آئے گی۔ پھر کابینہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیصلہ کرے گی کہ جن ذمہ داران کی نشاندہی کی گئی ہے، جو سفارشات سامنے اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جو فیصلے کی توثیق ہے وہ بھی حاصل کی جائے گی۔ ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال وہ بھی زیر غور آئے گی، اور سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے رابطہ کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اس بارے میں وفاقی کابینہ کو اعتبار بھی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق۔ ملک میں گندم بحران کیوں ہوا؟ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی سربراہی میں پارٹی رہنماؤں کی لاہور میں بڑی بیٹھک ہوئی۔ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، احسن اقبال اور دیگر قیادت شریک ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گندم خریداری پر صوبائی حکومت کی ترجیحات اور پالیسی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پارٹی قائد نواز شریف کو گندم بحران پر رپورٹ پیش کیے بغیر اسلام آباد چلے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت گندم کسانوں سے خریدتی ہے، باہر ممالک سے نہیں۔ پنجاب حکومت کا گندم کے معاملے سے تعلق تھا، نہ ہی بنتا ہے۔ گندم درآمد کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کرتی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کسانوں سے گندم خریدتی ہے، نہ کہ باہر کے ملکوں سے۔ تو پنجاب گورنمنٹ کا تو کسی صورت بھی کوئی تعلق نہ بنتا ہے، نہ ہے، نہ تھا۔ پورے ملک میں گندم کتنی چاہیے، کتنا آنا چاہیے، کتنا باہر سے آنا ہے، کتنا پاکستان میں سٹاک موجود ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ میرے اوپر کوئی نہ کوئی انکوائری ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی 1% بھی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ دنیا میں خوراک کی قلت کا بحران پیدا ہوتا رہا ہے، لیکن پاکستان شاید واحد ملک ہے جہاں گندم کا بحران گندم کی کم پیداوار کی وجہ سے نہیں بلکہ زیادہ پیداوار کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں ایسا کیا ہو گیا، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ بمپر کراپ، زرعی ملک اور گندم پیداوار میں دنیا کا 8واں بڑا ملک، بات ہو رہی ہے پاکستان کی۔ یہاں آٹا پھر بھی مہنگا ہے، اس کی وجہ سے روٹی بھی مہنگی ہے، لیکن کسان کی گندم کا ریٹ کم ہے۔ پاکستان کے میدانی علاقوں میں ان دنوں سنہری رنگ کی بہار ہے۔ اس سونے جیسے رنگ اور پیداوار کو دیکھ کر کسان خوش تو بہت ہوا، لیکن جلد ہی اس کی خوشی ماند بھی پڑ جاتی ہے۔ سرکاری ریٹ کی بات کی جائے تو گندم کی صوبہ سندھ میں سرکاری قیمت 4000 فی من ہے، جبکہ پنجاب میں اس کی فی من قیمت 3900 روپے مقرر کی گئی ہے۔ لیکن سرکاری قیمت پر بھی گندم کی خرید اب تک شروع ہی نہیں ہو سکی ہے۔ گندم تیار ہے لیکن خریدار نہیں ہے۔ 2900 سے 3200 کے درمیان اب کسان اس گندم کو بیچنے پر مجبور ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حکومت نے گزشتہ ماہ جو گندم درآمد کی تھی وہ ابھی موجود ہے، سرکاری طور پر اسے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اگر حکومت نے کسان سے گندم نہ خریدی تو ایک اندازے کے مطابق ان کا کم از کم 425 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے قانون کے مطابق ملک میں ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی اور پھر گندم درآمد بھی کی گئی، جو ابھی تک سرکاری گوداموں میں موجود بھی ہے۔ درآمد کرنے سے اپنے منظور نظر افراد کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا۔ محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق رواں سال صوبے میں 1 کروڑ 74 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل اگائی گئی، جو گزشتہ سال سے 12 لاکھ ایکڑ زیادہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان ممالک کی جو سب سے زیادہ گندم پیدا کرتے ہیں، وہاں گندم کا ریٹ کیا رہتا ہے۔
चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, जहां फी मन कीमत तकरीबन 2616 पाकिस्तानी रुपए बनती है। भारत की बात करें तो दुनिया में गंदम पैदा करने वाला ये दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां फी मन गंदम की कीमत तकरीबन 4000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। इसी तरह रूस और अमेरिका का नंबर आता है, जहां पर गंदम की कीमत किसान पाकिस्तान में मुकर्रर करदा कीमत से ज़्यादा है। मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के बाद ये ममालिक गंदम को बैरून मुल्क फ़रोख्त करते हैं, दरामद नहीं करते। गंदम खरीदारी शुरू ना होने पर किसानों की दूसरी तंजीम ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप के चेयरमैन हसीब अनवर कहते हैं कि मुल्क गिर एहतजाज के अलावा किसानों के पास कोई हल नहीं। किसान जाएं तो जाएं कहां? किसान अपनी ही गंदम फरोख्त करने के लिए दरबदर होने लगे। हुकूमत की गंदम के हवाले से पॉलिसी से किसान परेशान होकर रह गए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अनवर ग्रुप के चेयरमैन हसीब अनवर ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। हसीब अनवर का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क गिर एहतजाज के अलावा किसानों के पास कोई हल नहीं छोड़ा। हम भी जल्द मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। हम अपने एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ाने चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारे एहतजाज से, हमारे इन मामलात से किसी आम शहरी को परेशानी हो, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। चौधरी हसीब अनवर ने कहा कि हुकूमती वुज़रा किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजाना गंदम की कीमतें गिरती जा रही हैं, जिससे किसान को शदीद माली मसाइल का सामना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि गंदम का 300 अरब रुपए का स्कैंडल है। जब हमने इस मसले को असम्बली में उठाया तो हुकूमत का एक भी फर्द इसके दिफा के लिए मौजूद नहीं था। पंजाब की बैसाखी वाली हुकूमत कहती है गंदम स्कैंडल में निगरान हुकूमत मुलव्वस है। का $1 अरब का स्कैंडल है। ये तकरीबन आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ करें तो तकरीबन 350 अरब रुपए का स्कैंडल है। अच्छा, अभी इसको जिस वक्त हमने फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में उठाया तो वहाँ पे हुकूमत का एक शख्स नहीं था जो इसको डिफेंड करता है, इसका दिफा करता। पंजाब की मौजूदा बैसाखी वाली हुकूमत वो कहती है कि जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत उस पर मुलव्वस है। तो निगरान हुकूमत पंजाब का जो वजीर आला था वो कौन था? वो मोहसिन नकवी था ना, तो लिहाजा मोहसिन नकवी में इन्वॉल्व हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना केस की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन ने फैज़ हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की। धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हजूम पथराव कर रहा था, अगर हजूम गाड़ियों को आग लगा रहा था, आपकी उसमें कोई मुदाखलत नहीं थी। उनको बताना चाहिए कि अगर आप IG पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो लिखते कौन था उस वक्त IG पंजाब। कमीशन ने कुछ नहीं लिखा, किस किस्म की रिपोर्ट है? चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए, फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह सब 2007 में शुरू हुआ और हम 2024 में पहुंच गए। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। एहतजाज करना जमहूरी हक है, लेकिन कमीशन ने क्या किया? कमीशन कह रहा है पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जिनसे असलहा बरामद हुआ उनको भी नहीं बुलाया गया, जिस पर जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि जिन्होंने खाना और नाश्ता दिया उनको तो बुला लिया गया, अगर नहीं बुलाया तो TLP वालों को नहीं बुलाया। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कमीशन को TLP को बुलाना चाहिए था, उनका मौकिफ आना जरूरी था। भारत की साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने कहा है कि मोहब्बत तकलीफ नहीं देती और जो तकलीफ दे वो मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत तो जख्मों को भरती है। जो तकलीफ दे वो मोहब्बत नहीं। सानिया मिर्जा का मोहब्बत से मुताल्लिक जज्बाती पैगाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सानिया मिर्जा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जो गाहे बगाहे अपने मद्दाहों के लिए पैगामात जारी करती रहती हैं। ताहम अब की बार शोएब मलिक की साबका अहलिया ने इंतहाई जज्बाती अल्फाज में एक पैगाम जारी किया। सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पैगाम में लिखा कि मोहब्बत तकलीफ नहीं देती और जो तकलीफ दे वो मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत तो जख्मों को भरती है।
इंस्टा पर शोएब मलिक की साबका अहलिया ने अपने मद्दाहों को एक मशवरा भी दिया कि वो जिंदगी में हर आने वाली मुश्किलात का सामना मुस्कुरा कर करें। साबका भारतीय टेनिस स्टार ने इंस्टाग्राम पर अपनी चंद तस्वीर भी शेयर की, जिसमें सानिया खुशगवार मूड में दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया सारिफीन सानिया मिर्जा की तरफ से शेयर की गई तस्वीर और पोस्ट पर मुख्तलिफ किस्म का रद्द अमल दे रहे हैं। मारूफ अदाकारा जवेरिया अब्बासी ने मंगनी कर ली। सोशल मीडिया अकाउंट पर अदाकारा ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने हाथ में मंगनी की अंगूठी पहन रखी है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी मंगनी का ऐलान करते हुए दूसरी शादी का इंदिया दिया है। जवेरिया अब्बासी की पोस्ट मंजर आम पर आते ही उनकी बहन और अदाकारा अनुशे अब्बासी समेत दीगर साथी फनकारों और मद्दाहों की जानिब से मंगनी की खुशी में मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकर्रुरी तनाज़ात का शिकार हो गई। तहरीक इंसाफ भी चेयरमैनशिप के लिए कंफ्यूज, कभी शेर अफजल मरवत तो कभी साहिबजादा हामिद रजा के नाम ज़ेर गर्दश। अब शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC नामजद कर दिया गया। आखिर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। PTI के यू टर्न पर यू टर्न, पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप किसको दी जाए, फैसले में बार बार तब्दीली। शेर अफजल मरवत के नाम पर पार्टी के सीनियर कायदीन का एतराज, शेख वकास अकरम को चेयरमैन नामजद कर दिया। आई के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात में शेर अफजल मरवत की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात पर खूब क्लास ली गई। शेर अफजल मरवत मुलाकात से मुकर ही गए, जिस पर बानी चेयरमैन ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन बनाना मशरूत कर दिया और कहा कि अगर आपने मुखालफिन से मुलाकात की हो तो कभी चेयरमैन PAC नहीं बन सकते। बाहर निकलते ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने जल्दबाजी में शेर अफजल मरवत का ही ऐलान कर दिया। बानी चेयरमैन PTI ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की खबरों के बाद मामला शिबली फराज के सुपुर्द कर दिया था और ख्वाहिश का इजहार किया था कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी पंजाब से हो। शिबली फराज मामला सियासी कमेटी में ले आए, जहां 19 मेंबरान में से 9 मेंबरान ने शेर अफजल मरवत की मुखालफत कर दी और शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC नामजद कर दिया। सियासी कमेटी से नाम की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद किया जाएगा। जराये के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मौकफ अपनाया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप जिम्मेदारी का काम है, एक जूनियर बंदा कैसे इसका चेयरमैन बन सकता है। शेर अफजल मरवत की मुखालफत में जैन कुरैशी, असद कैसर, शिबली फराज, आतिफ खान समेत दीगर रहनुमा खुलकर सामने आ गए। शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC क्यों नामजद किया? शेर अफजल मरवत ने मामला बानी PTI के सामने रखने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, कोई राजवाड़ा नहीं, इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। बानी PTI ने मामले को सियासी कमेटी को रेफर नहीं किया। बानी से मुलाकात करके उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा।